Hello, my dear children. Very good morning. You're most welcome in class 11th accountancy. We are on the topic of preparing the financial statement, and in financial statement the first content as income statement. We are on the topic of trading account. You know it very well. The trading account is prepared to ascertain the gross profit or gross loss of the organization. It plays a very vital role providing the information to the management and all the stakeholders, those who have interest in the organization, such as management, investors, short-term creditors, long-term creditors, employees and trade unions, government and taxation authorities. These are the stakeholders of the business organization, and they want to know the exact financial performance and financial position of the business entity. I was explaining yesterday income statement, how the trading account is prepared, what's the item included in trading account, debit column. My dear children, a very little item included in trading account to ascertain the gross profit or gross loss of the business organization. In trading account debit column, it was told, and it is being told yesterday, that the opening stock in debit side, the goods remain unsold of the previous years will become the current year opening stock. So in debit side, opening stock will be included. Enter in debit side. Then after the purchase and purchase return, it was explained, goods which have been bought for resale are termed as purchased. And goods which are returned to the suppliers are termed as purchase returns or returns outwards. ध्यान रहे, परचेज रिटर्न और रिटर्न आउटवर्ड्स एक ही चीज है. परचेज अकाउंट
will be given on the debit side of the trial balance and purchase return account on the credit side of the trial balance. Purchase shows always the debit balance, purchase return always shows the credit balance. So purchase return will be shown as a deduction from purchases on the debit side of the trading account. Remember, मेरे कहने का मतलब ये है बेटा कि परचेज में से परचेज रिटर्न को डेबिट साइड के ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट कॉलम में माइनस करके घटा करके परचेज एक्चुअल परचेज दर्शाया जाता है. परचेज में वेदर दैट इज कैश परचेज और क्रेडिट परचेज, चाहे वो कैश परचेज हो चाहे वो क्रेडिट परचेज हो, सारा का सारा आपको ट्रेडिंग अकाउंट में दर्शाया जाता है. अब आइए डेबिट कॉलम का मैं बता रहा हूं, प्रोफार्मा भी पीडीएफ फाइल में मैंने दिया हुआ है. डायरेक्ट एक्सपेंसेस, all expenses incurred in purchasing the goods, bringing them to the godown and manufacture of goods are called direct expenses. मतलब ऐसे खर्चे जो हमारा माल खरीदने में या माल को गोदाम तक लाने या माल का उत्पादन करने में खर्च होता है, वही प्रत्यक्ष खर्च कहलाता है. इनको हम ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में ही रखते हैं. ये कौन कौन से खर्चे हो सकते हैं? वेजेस, मजदूरी. वेजेस और पेड टू वर्कर्स who are directly engaged in the loading, unloading and production of goods, and as such are debited to the trading account. Such expenses are debited to the trading account. One thing I would like to remind you, मतलब ऐसी मजदूरी बेटा जो वर्कर को दी जाती है, जो माल को बनाने या माल को गोदाम तक लाने में इंगेज रहते हैं, उसे हम मजदूरी कहते हैं और ये डायरेक्ट एक्सपेंस कहलाता है. अब एक चीज़ और ध्यान देने योग्य बात है, यदि आपके क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन में ऐसा दिया हुआ है कि इफ द आइटम वेजेज एंड सैलरीज is given in the question, that will be the item of trading account in debit column, remember. And if the salaries and wages is given in the question, that it will be shown on the debit column of profit and loss account. Remember, एक चीज का और ध्यान दीजिएगा, if wages are paid for bringing a new asset, machine, plant and other types of the, for its installation, it will be added to the cost of the such particular assets as machine, plant. Hence, it will not be shown in the trading account.
रिमेन मतलब ये उस एसेट्स की कास्ट या लागत बन जाए। कैरेज आर कैरेज इनवर्ड और फ्रेट, these expenses should be debited to trading account because these are generally paid for bringing the goods to the factory or place of the business। ढुलाई कैरेज जो होता है अक्सर ये साधारणतया माल को मंगाने का खर्च होता है, गोदाम तक लाने का खर्च होता है। However, if any carriage or freight is paid on the bringing an assets, कोई एसेट्स लाने में इस तरह का ढुलाई दिया जाता है, the amount should be added to the asset account, that will be the cost of the asset। It must not be debited to trading account। ऐसे खर्च को ट्रेडिंग अकाउंट में नहीं दर्शाया जाता। ध्यान रहे, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेज, ऑल एक्सपेंसेज इनकर्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ द कमोडिटी आर सोन इन द डेबिट साइड ऑफ द ट्रेडिंग अकाउंट सच एज कोल, कोयला, गैस, फ्यूल, ईंधन, वाटर, जल, पावर, फैक्ट्री रेंट, फैक्ट्री का किराया, फैक्ट्री लाइटिंग, फैक्ट्री का बिजली की व्यवस्था, ये सब जो है आपका डायरेक्ट एक्सपेंस में मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस में। डॉक चार्जेस, these are the charges levied on ships, सामान यदि बाहर से हम मंगाते हैं, and their cargo while entering or leaving docks, और वो जहाज या तो आ रही हो या बंदरगाह को छोड़ रही हो। if dock charges paid on import of goods, they are shown on the debit side of the trading account। कोई सामान हम इंपोर्ट करते हैं, आयात करते हैं, तो उसे डेबिट ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट कॉलम में दर्शाते हैं। इन द एब्सेंस ऑफ स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन दीज आर डेबिटेड टू ट्रेडिंग अकाउंट। कोई इस पर इंस्ट्रक्शन नहीं दिया गया है तो एक कॉमन रूप से ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट कॉलम में ही एंटर किया जाए। Import duty or custom duty, custom duty is paid on import as well as on export of goods। मतलब जब कस्टम ड्यूटी हम देते हैं शुल्क, तो बेटा ये या तो वस्तु का आयात करते हैं, निर्यात करते हैं, उन चीज़ों में हम इसको, तो ये भी ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट कॉलम में ही दर्शाया जाता है। अगर जो कोई स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन इसमें भी नहीं है तो आप इंपोर्ट ड्यूटी को ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट कॉलम में ही दर्शाएंगे खर्च के लिए। ऑक्ट्राय, चुंगी, दिस इज लेविड बाय द म्यूनिसिपल कमेटी व्हेन द गुड्स एंटर द सिटी। शहर में जब माल प्रवेश करता है तो म्यूनिसिपल कमेटी जो नगर पालिका है, नगर महापालिका की तरफ से ये चार्ज किया जाता है। इसे भी हम ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट कॉलम में ही दर्शाते हैं क्योंकि ये माल मंगाने का खर्च है। रॉयल्टी, अधिकार शुल्क, दिस इज द अमाउंट पेड टू द ओनर ऑफ ए माइन और पेटेंट फॉर यूजिंग हिज राइट और पेटेंट। यह रॉयल्टी अधिकार शुल्क किसे दिया जाता है? जो आपका पेटेंट, आपका नाम लेकर के व्यवसाय करता है। रॉयल्टी इज यूजुअली चार्ज टू ट्रेडिंग अकाउंट। साधारणतः इसे ट्रेडिंग अकाउंट में ही चार्ज किया जाता है बिकॉज इट इंक्रीज द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन।
इससे क्या होता है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ती है, लागत उत्पादन का बढ़ जाता है। हाउएवर इफ इट इज स्पेशली स्टेटेड इन द क्वेश्चन दैट द रॉयल्टी इज बेस्ड ऑन सेल्स, मतलब ये बिक्री के ऊपर आधारित है, तो इट विल बी चार्ज टू प्रॉफिट एंड लॉस, तब इसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हम चार्ज करते हैं। क्रेडिट साइड ऑफ द ट्रेडिंग अकाउंट, सेल्स आर सेल्स रिटर्न वॉट एवर द गुड्स परचेज फॉर रीसेल both cash and credit, that is the sales, and the goods returned by the customer, that is called the sales return or return invoice. Sales always shows the credit balance, sales return shows the debit balance. So this one is shown in trading account in credit side deducted from sale. सेल से इसको घटाकर दिखाया जाता है। दूसरा चीज आता है क्लोजिंग स्टॉक, द गुड्स रिमेनिंग अनसोल्ड एट द एंड ऑफ द ईयर इज नोन एज क्लोजिंग स्टॉक। It is valued at cost price or realizable value, whichever is less. या तो ये कास्ट प्राइस पर या रियलाइजेबल वैल्यू जो इसका है, दोनों में से जो कम हो उस पर ये दर्शाई जाती है। इट इंक्लूड्स द क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, कच्चा माल, सेमी फिनिश्ड गुड, अर्धनिर्मित माल एंड फिनिश्ड गुड, पूरा का पूरा बना हुआ सब। माय डियर चिल्ड्रन, नॉर्मली द क्लोजिंग स्टॉक इज गिवन आउटसाइड द ट्रायल बैलेंस। This is so because its valuation is made after the accounts have been closed. इसका इसलिए बेटा आउटसाइड में अक्सर मिलता है साधारण तौर पर, क्योंकि सारी अकाउंट्स की बुक क्लोज हो जाती हैं, तब क्लोजिंग स्टॉक को हम वैल्यूएशन करते हैं। इट इज इनकॉर्पोरेटेड इन द बुक्स बाय मीन्स ऑफ द फॉलोइंग एंट्री, इसकी एंट्री पास कर दी जाती है। क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट मीन्स क्लोजिंग स्टॉक ट्रांसफर टू ट्रेडिंग अकाउंट, क्लोजिंग स्टॉक ट्रांसफर टू ट्रेडिंग अकाउंट। अब नेक्स्ट आपके मन में ये प्रश्न आ रहा होगा कि सर यदि क्लोजिंग इट्स स्टॉक आउटसाइड ऑफ द ट्रायल बैलेंस हो, इनसाइड ऑफ द ट्रायल बैलेंस हो, ट्रायल बैलेंस के अंदर हो, तो आउटसाइड वाला तो आपने देख लिया कि ट्रेडिंग अकाउंट में दर्शाते हैं। व्हेन द such entry has been passed, it is passed, then the closing stock account is opened. On the one hand it will be posted to the credit side of the trading account, and the other hand it will be posted to the, it is shown in the balance sheet in asset column. Sometime the closing stock is given inside the trial balance. कभी कभी आपको मिलेगा ट्रायल बैलेंस के अंदर ही। दिस विल मीन
that the entry to incorporate the closing stock in the books has already been passed. Means this closing stock is adjusted. It would imply that the closing stock must have been deducted out of purchase. इसका मतलब ये हुआ कि ये परचेज से माइनस कर दिया गया है. Hence, in such case, closing stock will not be shown in the trading account, but will appear on the asset side of the balance sheet only. In Hindi you can find, यदि बेटा आउटसाइड में है ट्रायल बैलेंस के क्लोजिंग स्टॉक, ट्रायल बैलेंस के अंदर नहीं है, तो इसे क्या करेंगे हम ट्रेडिंग अकाउंट में भी दिखाएंगे क्रेडिट साइड में, और बैलेंस शीट के एसेट्स कॉलम में भी दिखाएंगे. और यदि क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस के इन साइड में है, अंदर है, तो इसका मतलब ये होता है कि ये एडजस्टेड है, समायोजित है, परचेज से परचेज अकाउंट में कम कर दिया गया है, और इसे सीधे हम कहाँ दिखाते हैं, बैलेंस शीट के एसेट कॉलम में. तब ट्रेडिंग अकाउंट में इसका कोई मतलब नहीं रह जाता. अब ट्रेडिंग अकाउंट का डेबिट कॉलम यदि एक्सीड करता है तो हमारा ग्रॉस लॉस होगा, जो डिफरेंस होगा. दोनों तरफ का हम टोटल करेंगे, क्रेडिट कॉलम और डेबिट कॉलम. तो यदि डेबिट कॉलम एक्सीड अधिक है क्रेडिट कॉलम से, तो जो डिफरेंस होगा वो ग्रॉस लॉस होगा. यदि क्रेडिट कॉलम एक्सीड करता है डेबिट कॉलम को, मतलब क्रेडिट कॉलम हमारा अधिक है डेबिट कॉलम से, तो हमें ग्रॉस प्रॉफिट होगा, और इस ग्रॉस प्रॉफिट को हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे, चाहे वो ग्रॉस प्रॉफिट हो चाहे ग्रॉस लॉस हो. यदि प्रॉफिट होगा तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिखेंगे बाय ग्रॉस प्रॉफिट, और यदि लॉस होगा तो हम लिखेंगे टू ग्रॉस लॉस डेबिट का, और उसके बाद और एंट्री करेंगे. तब नेट प्रॉफिट और नेट लॉस हम पता करेंगे. इतना ही है, इसे ध्यान से सुनेंगे, बेहतर ढंग से करेंगे. थैंक यू.